question that is running in every student's mind today. Should I actually write I'm Bangalore's newly announced UG admission test? In this particular session, we are going to do in-depth analysis. There are certain reasons of saying no to that, and there are certain reasons of saying yes to it. We're going to do in-depth analysis so that we can actually reach to our conclusions, whether we are actually made for this particular test, whether we should write this particular test or not. Stick till the end. A very, very crucial session awaiting for every IPM aspirant, a must watch. So stick till the end. I'm Rahul Vaswani, welcoming you all, and subscribe to Supergrads YouTube channel before we begin. Now, without any further ado, let's get started. The first point of question comes to mind is uh, that this particular course is specially designed for students who are passionate about specialized fields. Yes, let's face it, it's not going to be a generic field. It may be having a tinge of liberal arts and business studies, but it's majorly inclined towards economics and data science. Good part about this is they're both immensely potential driven careers. Both of them are futuristic in nature, but not made for everyone. So if you're someone who is not good at mathematics, who doesn't like complex data solving, who is someone, if you're someone who is not that academically oriented and dealing with tougher subjects is the problem always, these two subjects are actually not made for you. But the flip side is both of them carry a lot of weight. Both of them carry a lot of career opportunities. Both of them are really, really powerful in terms of the career. So if you're taking it, you should only be taking it if you're aligned passionately with these two careers. Okay, this is point number one. Second point, today the major problem that students are facing, in fact those who are having mathematics as additional subject in standard 12th, that the timelines of this examination they are not able to bear it. The problem over here is 13th of December, Saturday, is the examination of IMB's UG admission test. Then somewhere in between from 21st to 28th, if I'm not wrong, they'll have their interviews, right? So during that particular course, they're also going to write their 12th board examinations or pre-boards and everything, right? So what are the positive impacts because of these timelines? Let's evaluate that. And then what are the negative impacts because of these timelines? Let's look into them one by one. Students get early exposure to exams and competition, allowing them to gain solid learnings and experience ahead of time. It's the biggest advantage. So if you're writing this particular test and you're also preparing for IPM examinations later, then this examination is way ahead of time. 5 months ago, it's happening, and certainly it will give you a solid learning and certain experience that you can actually deep dive and improve your standing in the upcoming IPM examinations because you'll have 4 to 5 months of time after that, right? Second point, a significant portion of syllabus can be completed well in advance, reducing last minute pressure. So सोच के देखो एक बार पूरा syllabus complete हो जाता है दिसंबर तक कंपटीशन को कितना पीछे छोड़ सकते हो, राइट? सो स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर दिस एग्जाम मे हैव कॉम्पिटिटिव एज, सॉरी 3-4 हजार 5 हजार, क्योंकि पहली बार एग्जामिनेशन हो रहा है। जितने बच्चे इस एग्जामिनेशन को लिख रहे हैं वो बच्चे आईपीएम के एग्जाम्स को भी लिखेंगे, और कंपटीशन से उनको एक एडवांटेज मिल जाएगा क्योंकि उनका टाइम के अकॉर्डिंग चीजें पहले हो रही हैं। ये तो सिर्फ सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, बट पॉजिटिव बातें तो हो रही है, नेगेटिव बातों को क्यों भूलें अपन? देयर आर लॉट ऑफ negative aspects also that we need to look into. Okay, 12th key specifically, 12th grade students may specifically face challenges in managing boards and aptitude preparation simultaneously. Second problem, students who have still not started their aptitude preparations, biggest challenge for them, who have not started their aptitude preparation will have to start and cover the syllabi from day one. That is the biggest challenge for them, right? Third, interview dates, as already being mentioned by me earlier, being very close to pre-board or board examination can create additional stress and scheduling conflicts for students. Let's face them. These are the biggest challenges being faced because of the difference in the timeline that we are not prepared for. We were always prepared for an examination that's actually going to happen post board, but this is coming before board, and perhaps giving admission after boards, but examination as well as interviews happening before boards. So 12Ts are really going to face the music over here. Now, next slide is interesting. So, I think this is something that can really, really help you all, give you a lot of motivation,
and inspiration as well. So balancing IMP UG admission test prep with boards is something, if you are able to do it. I know it's hard nut to crack. I know it's not going to be easy for everyone, but if you are able to do it, then you will always maintain. So you will need to maintain healthy balance every time. How you are able to do it? Let's पहले वो देख लेते हैं. तो उससे क्या होगा वो भी देख लेंगे. So you will have to maintain a solid timetable. That's the only recipe that has a tinge of preparation for this aptitude test, that has a tinge of preparation for the board examination, and certainly devote more hours this time. You cannot rely on 3 to 4 or 5 hours of studies. You need to devote 7 to 8 hours of studies from now on if you really want to get inside IIM Bangalore as well and want to do good board examinations as well. And ये क्या आप पहली बार फेस कर रहे हैं? Next question. No, you can learn from others. There are students who maybe they're in the classrooms going to face CLAT examination in the month of December. There are students who will be facing design examinations in the month of January. So they have been following these schedules successfully year on year. तो ये एक सक्सेस हिस्ट्री एंड सक्सेस स्टोरी पहले भी है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पहली स्टूडेंट हो जो ये फेस करने वाले हो. ये आपके साथ ही पढ़ने वाले क्लैट के स्टूडेंट्स और डिजाइन के स्टूडेंट्स हर साल फेस करते हैं. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अर्ली कंपटीशन एडवांटेज. Completing the syllabus is always a trouble in everyone's mind. Completing one set of test series is a second trouble in one's mind. और मैंने देखा है जो स्टूडेंट्स ये चीज दोनों पहले कर देते हैं वो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज पे होते हैं. दे ऑलवेज हैव अ क्लियर एज ओवर अदर्स. और ये एग्जाम आपको फोर्स कर कर धक्का देकर ये दो काम तो करवा देगा, क्योंकि जब सर पे पड़ी होती है तो स्टूडेंट जरूर ये काम करता है. एंड अर्ली कंपटीशन एडवांटेज आपको सारे के सारे आईपीएम एग्जाम्स मिलेगा. ये मैं लिखित में दे सकता हूं अगर इस एग्जाम को आप लिख रहे हो तो. इसके अलावा सुपरक्रैट्स का क्रैश कोर्स 13 अक्टूबर से चालू हो रहा है. ये क्रैश कोर्स आपको इस पुश देने में सपोर्ट करेगा. सो जो पुश अभी मैं दिखा रहा था वो पूरा का पूरा काम सुपरक्रैट्स का क्रैश कोर्स करने वाला है. 13 अक्टूबर 2025 से 7:20 पे क्लासेस चालू हो रही है. हर दिन 2 क्लासेस है. इट्स नॉट इजी. 110 आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर्स. फाइनेस्ट फैकल्टी टीम पढ़ाने वाली है. कॉम्पिटिटिव स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको कंप्रिहेंसिव वाला. उसके बाद एक्सटेंसिव टेस्टिंग होगी. 10 फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे. टॉपिक टेस्ट, प्रैक्टिस मोड सब चालू होगा. एआई ड्रिवन परफॉर्मेंस, डाउट क्लियरिंग आप रात में भी भेज सकते हो डाउट्स, आपको आंसर मिलेगा. ठीक है. उसके बाद मेंटरशिप सपोर्ट, स्ट्रक्चर्ड मेंटरशिप सपोर्ट जिसे कहते हैं, टेलर्ड मेंटरशिप सपोर्ट कहते हैं. अगर आप लाइट हाउस साथ में इनरोल हो रहे हैं लाइट हाउस के अंदर तो इससे अच्छी मेंटरशिप आपको कहीं नहीं मिलने वाली. आई कैन राइट इट ऑन एंड गिव इट टू यू गाइस. ठीक है. ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बताना चाह रहा था. आप चेक करिएगा जरूर फर्स्ट क्लास को इसकी 13 अक्टूबर 2025 को ही. चलो आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं. बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन माय माइंड दैट यू हैवंट आंसर्ड सर. एंड उसमें सबसे पहली चीज आती है हाई फीस की. आप ही कह रहे थे कि 34 लाख के ऊपर की फीस है. पहले तो 34 लाख की बात हो रही थी, अब तो ये भी कहने को आ गया कि थर्ड एंड फोर्थ ईयर में और फीस बढ़ जाएगी. तो ये 36-37 लाख के आसपास बैठती है तो क्या ये वर्थ इट है? चलो एक सीधी सीधी बात करके देखते हैं. IIM बैंगलोर नहीं जाओगे तो आईपीएम कॉलेजेस को टच कर रहा हूं आज के टाइम पर. आपने पहले ही डिसीजन लिया था ये वाला कि मुझे आईपीएम साइड पढ़ाई करनी है. तो अगर आपने डिसीजन लिया था तो कहीं ना कहीं 35 से 42 लाख रुपए के आसपास की फी के लिए आप रेडी थे. प्रॉब्लम कहां पे आई? हम रेडी तो थे बट हम लोग, बहुत सारा स्टूडेंट बेस ऐसा होगा जो ये सोचता होगा कि ये तो सिर्फ आपको ग्रेजुएशन दे रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं दे रहा है. बट एक चीज यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि IIM से अगर चाहे वो ग्रेजुएशन पे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन पे, दे आर नॉट गोइंग टू मेलो डाउन इट फॉर यू. वो कहीं पर भी फीस को कम नहीं करने वाले. हमने बाकी सबको तो छोड़ दो, IIM कोई के टाइम पे भी डिस्कशन चल रहा था, हमने IIM सरवॉर को भी देख लिया. दे आर नॉट डूइंग इट. दे आर नॉट डूइंग इट एट ऑल. IIMs charge premium because they maintain high quality infrastructure, they have global tie-ups, top notch deliverables, और ये सारे के सारे मेंटेनेंस में कहीं ना कहीं पैसा जाता है. दूसरा, डिवैल्यू इसलिए भी नहीं कर सकती क्योंकि ना कहीं उनके ब्रांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा. दे कैन नॉट कम अप विद चीपर सेट ऑफ कोर्स एंड दे हैव टू फंड देमसेल्व्स. खासकर IIM बैंगलोर जैसे पुराने IIMs को खुद करना पड़ रहा है. सो इट मे फील एक्सपेंसिव, यस, बट बाकी एजुकेशन करियर्स भी एक्सपेंसिव है लाइक MBBS इन इंडिया. नॉट सो ये चीज मैं सपोर्ट नहीं कर रहा कहीं पर भी, बट लेट्स फेस इट कि ये फीस तो कम नहीं होने वाली. और मैं अगर बैंगलोर छोड़ रहा हूं तो कहीं ना कहीं मुझे कल इंदौर में फेस करना पड़ेगा, नहीं तो रोहतक में फेस करना पड़ेगा, नहीं तो रांची में फेस करना पड़ेगा, नहीं तो शिलोंग में फेस करना पड़ेगा, नहीं तो
सो एवरीवेयर कहीं थोड़ा बहुत इक्का दुक्का कम हो जाएगी, शिलोंग थोड़ा सा कम कर देगा, लेकिन लेट्स फेस इट, ये फीस कम तो नहीं होने वाली कहीं पर भी, अगर आपने आईपीएम साइड पे प्रिपरेशन करने की ठानी हुई है। सो ये प्रॉब्लम जस की तस आज भी है, ठीक है। सो आपको अच्छी लगे ना अच्छी लगे, इसका सोल्यूशन कहीं पर इसमें न पढ़ाई करना नहीं है, क्योंकि आपने डिसीजन लिया हुआ है ओवरऑल के लिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फीस स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको आई एम बैंगलोर का टैग मिल रहा है, और वहां पर आप 4 साल रेसिडेंशियल कैंपस के अंदर पढ़ाई कर रहे हो, तो एक बड़ा एडवांटेज तो ये है, ठीक है। सो फीस हाई है, एडमिट, लेकिन आपको आई एम बैंगलोर का टैग, आई एम बैंगलोर से पढ़ाई और आई एम बैंगलोर के डिलीवरेबल्स, आई एम बैंगलोर के टाई सब कुछ मिल रहा है वहां पर, उस वो उसकी कीमत है वो, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गई हाई फीस की बात। अब बात एक और करते हैं प्लेसमेंट्स और आउटकम्स की। क्लियरली लिखा हुआ है वेबसाइट पर कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा इन बैंगलोर, बट काफी सारे ख्यालात मन में आते हैं कि 100% प्लेसमेंट गारंटी है। मैं खुद बोल रहा हूँ नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद लिखा है, ठीक है। दूसरी चीज, कितना प्लेसमेंट होगा, अंडर ग्रेजुएट का है, पोस्ट ग्रेजुएट का नहीं है, तो कितना आने वाला है, उस नाव में हर कोई अभी सवार है, नो बडी नोज दैट, ठीक है। सिंस इट्स द वेरी फर्स्ट बैच, एवरेज प्लेसमेंट फिगर्स एंड आउटकम्स आर नॉट फुली नोन येट, इट्स नेचुरल टू फील अनसर्टन, पहली पॉइंट। सिंस इट्स एन undergraduate program, success in isn't only measured by placement but also by opportunities for higher education and global exposure। और सबसे बड़ा दुविधा है, क्योंकि क्या होता है, बीबीए पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं, अगर आप देखोगे बड़े से बड़े कॉलेज में, शहीद सुखदेव को ही उठा के देख लोगे, तो 50 वहां पे ऑप्ट आउट नंबर बहुत ज्यादा होता है, अनलाइक इन पीजी जहां पर प्लेसमेंट ले ही लेता है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा उसके बाद पीजी करना चाहता है। सो यहाँ पर दबाव आई एम बैंगलोर के ऊपर डबल है, क्योंकि सिर्फ वो प्लेसमेंट्स नहीं कराना चाहता, वो हायर एजुकेशन की ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी सीख करेगा। और क्लियरली मेंशन कर रहा है वेबसाइट पे, आप जाके चेक करिएगा प्लीज, कि वो ग्लोबल टाइप्स को देखेगा ताकि आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सके। लेट्स फेस दैट पर्टिकुलर थिंग एज वेल, ओके। IIM Bangalore has clearly outlined placement support and higher education guidance on the website, but they are also mentioning they do not guarantee it. तो क्या किया जाए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, हम भी नए हैं, पहला बैच है, हमें नहीं पता कितना आउटकम होने वाला है, प्लेसमेंट सपोर्ट दे रहा है, बस दूसरा साइड देखा जाए, बड़ा इंस्टीट्यूट है, लेगेसी क्रिएट कर रहा है, इंटरनेशनल रैंकिंग्स हैं, उसके नाम से आपके नाम की वैल्यू बढ़ जाएगी ताउम्र, ऑलवेज फॉर ऑलवेज। ये सारे पॉजिटिव्स को देखकर बिना सोचे हमें आगे बढ़ना चाहिए, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग, स्टूडेंट शुड ट्रस्ट द रेपुटेशन, brand value, legacy of IMB, which has consistently delivered excellence for years, my dear friends. So, मैंने पॉजिटिव्स को भी अच्छी तरीके से डिस्कस किया, नेगेटिव्स को भी अच्छी तरीके से डिस्कस किया। अब आपके पास एक प्रश्न छोड़ता हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आपको कौन से पॉइंट ज्यादा हैवी लग रहा है, और क्या डिसीजन आपका अब बन रहा है, basis what are the positive things and negative things in taking this particular decision, should I really write this particular examination or not। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर हम आईपीएम पढ़ने जा रहे हैं, राइट, मैनेजमेंट साइड पढ़ने जा रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस की तरफ जाना सही रहेगा कि नहीं, हमको मैथ्स तो अच्छी लगती है, हमको इंटरेस्ट भी इकोनॉमिक्स में, इसमें। सो करियर पाथवेज ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो वेबसाइट पे डिस्क्लोज किए गए हैं वो ये है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग जो कि आपको एमबीए के बाद मिल सकता है, और यहाँ पे भी फाइनेंशियल सर्विसेज जो फाइनेंस रिलेटेड स्टूडेंट्स को मिलता है, डेटा एनालिटिक्स, पॉलिसी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप इको सिस्टम, ये क्लियर करियर पाथवेज आई एम बैंगलोर मेंशन कर रहा है वेबसाइट पे। बेसिस दैट डिस्कशन, बेसिस दिस यू कैन टेक योर डिसीजन, एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे after this particular video. I am Rahul Vaswani now signing off from this particular video, but will appeal you to join our Telegram channel for free content। आपको करना क्या है, टेलीग्राम पे जाके सोफाक्रेट्स को सर्च करना है, सब्सक्राइब करना है, फ्री प्रेप मटेरियल के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, पोल्स एंड फिल्म इनसाइट्स के लिए, ट्रिक्स एंड टिप्स के लिए, गैमिफाइड लर्निंग के लिए, एंड एक्सक्लूसिव IIM इनसाइट्स के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।